Good morning, students. Hope that you all will be fine and safe. In the paper 7B, Knowledge and Curriculum, we have done just a uh, detailed description about curriculum and curriculum development. So just take a brief recap of our last class. What is curriculum? We in last class we had done that what is curriculum and what does it include. It includes a specification of what should be learned and how it should be taught, and the plan for implementing or assessing the learning. After that, we had done about curriculum development. What is curriculum development? It is basically the process of selecting, organizing, executing and evaluating the curriculum. Then process of curriculum development, and today we will do about determinant of curriculum development. The determinant of curriculum development include all those factors that influence in some way or the other the process of curriculum making as well as the implementation of the curriculum. So on the basis of basic pillar of education, there are three main determinant of the curriculum, which are philosophical, psychological and sociological. So today we will do about the philosophical determinant of the curriculum. Before going to start with the philosophical determinant of curriculum development, it is very important to know about the philosophy and education and how these two are related with each other. And it is well defined and it is well correlated by Mr. J.R. Ross that philosophy and education are like two sides of the same coin. The one is implied by the other, and the former is the contemplative side of life, while the latter is the active side. Here, contemplative side means prolonged thinking or the deep thinking. So the philosophy is related to the deep thinking of life, and the education is the active side or the process side of the life. It emphasizes that philosophy is the end and education is the means to achieve the end. How come philosophy is the end and education is means to achieve the end? The philosophy determines the goal of life and education tries to achieve that goal through aims and curriculum. दर्शन जीवन के गोल को निर्धारित करता है और एजुकेशन इस गोल को अचीव करने का एजुकेशन इस गोल को एम्स ऑफ एजुकेशन और करिकुलम के थ्रू अचीव करती है. फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क व्हाट डू वी नीड? किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फर्स्ट इज द थॉट और द प्लान एंड देन द एप्लीकेशन और प्रैक्टिकेबिलिटी. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी घर को बनाने के लिए आपको पहले सोचना होता है कि हमें किस तरह का घर चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोग हैं, और फर्दर अगर और ज़्यादा लोग गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए. उसके हिसाब से आप ब्लूप्रिंट रेडी करवाते हैं और ये कब फुलफिल होता है? जब आप इसको प्रैक्टिकल वे में लाते हैं, जब बन करके ये कंप्लीट हो जाता है. तो थॉट यानी प्लानिंग साइड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिर उसका एप्लीकेशन साइड, दोनों पैरेलली इम्पॉर्टेंट है. सो किसी सोसाइटी का निर्माण, किस तरह के सोसाइटी समाज चाहिए हमें, किस तरह के उस वहाँ के कैसे लोग होने चाहिए, इन लोगों की क्या विचार होने चाहिए, ये सब थिंकिंग में आता है. और यहाँ बोल सकते हैं थिंकिंग साइड और द फिलोसफिकल साइड में आता है. और उसको एम्स ऑफ एजुकेशन और उस एम्स ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन का हम सहारा लेते हैं और जिसे करिकुलम के थ्रू हम एप्लीकेशन वे में और प्रैक्टिकल वे में लाते हैं और अचीव करते हैं उस थॉट को. नाउ फिलोसफी इज द थॉट और द प्लान साइड, as I told you, and education is the application or practical side.
Education tries to achieve aim of life through goal of education and curriculum. And these goal of life are determined by philosophy of life prevalent at that time. In other words, philosophy of a country at a particular time determines the curriculum in which such as subjects, activities and experiences are included with which are supposed to meet the demand of the society at that time. यानी कि हमारी सोसाइटी हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हमारा सोच के अनुसार ही हमारा सोच डिपेंड करता है, उसी समाज की आवश्यकताओं पर हमारा सोच डिपेंड करता है, यानी हमारी फिलॉसफी डिपेंड करती है और उसी के हिसाब से हमारा गोल ऑफ लाइफ डिटरमाइन होता है, जिसे हम एजुकेशन के थ्रू अचीव एम्स ऑफ एजुकेशन और करिकुलम के थ्रू अचीव करते हैं. As the goal of life and aims of education changes from time to time, from place to place, and according to the philosophical ideologies, the curriculum of education also changes according to the change in time, place, circumstances, and prevalent ideology. समय के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं चेंज होती हैं और उसके हिसाब से हमारा गोल ऑफ लाइफ भी चेंज होता है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारी फिलॉसफी चेंज होती है और गोल ऑफ लाइफ भी चेंज होता है और उस चेंज के फलस्वरूप हमारा एम ऑफ एजुकेशन भी चेंज होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि करिकुलम भी चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंट डे करिकुलम फॉर एन इंडियन सोसाइटी इज नॉट द सेम एज इट वॉज इन द एंशिएंट टाइम. This is because the present day philosophical ideology, goal of life and aims of education of a modern society are quite different from those of ancient time. आज के समय में जो हमारी फिलॉसफी है, आज के समय में हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, वो पहले के समय से काफ़ी चेंज है. पहले टीचर सेंट्रिक हुआ करती थी, आज स्टूडेंट सेंट्रिक होती है. इतनी ये सारी चेंजेस और अभी भी फर्दर चेंजेस हो रही है. जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होती है, हमारी आवश्यकताएं चेंज हो रही है, हमारे फिलॉसफिकल थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं और उसके हिसाब से करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन भी चेंज हो रहा है. और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में और अभी भी देख रहे हैं कि करिकुलम के थ्रू हम एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करते हैं. तो फाइनली करिकुलम भी चेंज हो रहा है. नाउ द करिकुलम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द नेशन. With the time, philosophical thoughts have evolved and gone. हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में वहाँ के जो करिकुलम है वो वहाँ के फिलॉसफी को शो करता है कि किस तरह के लोग होने हैं, वहाँ के लोगों को क्या व्यवहार, विचार, अर्थव्यवस्था कैसी होनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ के फिलॉसफी पर ही आधारित है. उसी के आधार पर एम ऑफ एजुकेशन बनाए गए और जिसे अचीव करने के लिए वहाँ की करिकुलम व्यवस्था का निर्माण किया गया. इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ डिफरेंट फिलॉसफीज आए और आवश्यकताओं के अनुसार ये सारी फिलॉसफी चेंज भी होती गई. कोई एक फिलॉसफी पर हम स्टिक नहीं रहे क्योंकि हमारी आवश्यकताएं भी अनंत है. जैसे जैसे आवश्यकताएं चेंज हुई, हमारी फिलॉसफी चेंज हुई. लाइक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म. According to idealism, it insists on God. To achieve idealism insists on God, and to achieve God, spiritual perfection is necessary. Spiritual values are supreme and universal. Idealism ने materialistic को बिल्कुल वेटेज नहीं दिया. उसके हिसाब से जो है वो भगवान है क्योंकि वो नरेश्वर है, वो मरते नहीं हैं. और इस फिलॉसफी के आधार पर एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और जिसे करिकुलम में ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा, इसके तहत करिकुलम में ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया. फिर समय चेंज हुई, आवश्यकताएं चेंज हुई, इसके साथ साथ हमारी फिलॉसफीज भी चेंज होती गई. आज के समय में विच इज़ नथिंग, आज के समय में हमारी है कंस्ट्रक्टिविस्टिक्स फिलॉसफी, जो बोलती है कि लेट द चाइल्ड बी द कंस्ट्रक्टर ऑफ देयर ओन नॉलेज
teacher has to just provide the scaffolding of these thoughts and ideas. यहाँ चाइल्ड फीडिंग, स्पून फीडिंग वाली बात को बिल्कुल तरह से नकारा गया है कि बच्चे को खुद से सोचने दे, उनकी खुद के विचार को आने दे, तब और तभी यहाँ इसी के तहत यहाँ टीचर एज अ गाइड और सपोर्टर की तरह, एज अ फैसिलिटेटर और गाइड की तरह यहाँ टीचर को देखा गया है. यहाँ लर्नर्स कम्युनिकेट with each other and share their understanding, feeling, knowledge and experiences to come up with new knowledge. अपने पुराने experiences और new experiences के through new knowledge को achieve करने की बात कही गई है. कोलैबोरेटिव, इसी के तहत करिकुलम में कोलैबोरेटिव लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग को इंसिस्ट किया गया है. और इट फॉस्टर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. ये सारी कंस्ट्रक्टिविस्टिक फिलॉसफी के तहत की गई है. तो ये अभी के सिनेरियो में जो चेंजेस हमारे दिख रहे हैं, जो हमने मीनिंगफुल लर्निंग उसके तहत पूरा आजकल देखते होंगे आप, एनसीईआरटी के बुक में भी हर एक जगह आपको एक्टिविटीज़ मेंशन किया गया कि बच्चे को ऐसे करने के लिए आप इनकरेज करो और टीचर इस समय यहाँ इस तरह से उसे इनकरेज करेंगे. मतलब टीचर एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग ऑफ देयर थॉट्स. उनके थॉट्स को एक आयाम देने, उनकी नई सोच को एक आयाम देने का काम करती है, मतलब सपोर्ट करती है. Hence we can say that the curriculum is positively correlated with the philosophy at that time. जिस समय की जो फिलॉसफी है उसी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम भी होती है. अगर वो फिलॉसफी चेंज हो रही है तो करिकुलम भी चेंज होती होगी. करिकुलम फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें चेंज होंगी विद द चेंज ऑफ द फिलॉसफी. सो इट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर. यहाँ एक पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है. यहाँ प्रॉब्लम है कि बच्चे का ग्रेड कम आया है, मार्क्स कम आए हैं. तो ये फर्स्ट केस में जो कि टीचर सेंट्रिक फिलॉसफी को फोस्टर करता है, यहाँ बच्चे की कंडीशन को देखिए. अगर ग्रेड कम आया है तो ओनली एंड ओनली वन पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नथिंग बट द चाइल्ड, नो वन बट द चाइल्ड. यहाँ केवल बच्चे से ही पूछा जा रहा है, बच्चे की ही जवाबदेही बन रही है. मगर इन टुडेज सिनेरियो हियर सी द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड ओवर हियर. यहाँ अगर बच्चे का ग्रेड कम आता है तो बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. जितना बच्चे से पूछा जाएगा उतना टीचर से भी पूछा जाता है कि व्हाई इट इज़ सो. सो ये जो चेंजेस आए हमारे करिकुलम में, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन फिलॉसफी, थिंकिंग, थॉट. तो जिस तरह से, तो हम इसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी के चेंज होने पर करिकुलम का फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट भी चेंज होता है. बोथ टू आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर. सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट और डिटर्मिनेंट्स को हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे एट होम.